السلام علیکم، خوش آمدید نیا دن کے ساتھ. میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلم. نیا دن ہے، خوشگوار دن ہے، اور سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک، نیا دن مبارک. اور ہماری دعائیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل کرے. آج کے پروگرام میں بہت ساری چیزوں پر ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو اس مہینے کی آمد کی بات کریں گے جس کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے، کیونکہ رحمتوں کا، برکتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا یہ مہینہ ہے. تو رمضان المبارک کی آمد ہے. ماہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے، رمضان میں ایسے کون سے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور ایسے کون سے کام ہیں جن سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. اور میں یہ پرسنلی کہنا چاہوں گی کہ جو کام ہم رمضان میں کرنا سٹارٹ کریں، پلیز تھرو آؤٹ اپنی لائف اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کوئی ایک نیکی ایسی اپنائیں اس مہینے میں کہ جس پہ آپ فیصلہ کریں کہ اب مجھے اس کو کیری کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ آگے آنے والا پورا سال آپ کے لیے یوں ہی بابرکت ثابت ہوگا. اس کے علاوہ شو میں کیا ہوگی بات، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی جڑواں بہنیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ شو میں ہوں گی اور انہوں نے مارشل آرٹس میں خوب کامیابیاں سمیٹی ہے، تو شو کا حصہ انہیں بھی بنائیں گے. اور ایک اور چیز ہے جس پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کی زندگیاں معمول کے مطابق اب اس طرح کی ہو گئی ہیں جس طرح سے ہم کووڈ سے پہلے والے دور میں جی رہے تھے نا. اب آپ نے ماسک نہیں لگانا، اب آپ نے وہ والی تمام پابندیاں جو کہ تھی کہ اب آپ جائیں گے اور ویکسینیشن کروانا لازم ہے، کیونکہ تمام لوگ 99.999% جو ہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا بھی چکے ہیں. ہاں، لیکن یہ جو 0.009 والے رہ گئے نا، وہ بھی اب نہ کریں، وہ بھی کروا کے آ جائیں ویکسینیشن. تو پابندیاں اٹھ گئی ہیں، زندگی معمول پر آ گئی ہے، رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں. مجھے یاد ہے پچھلا رمضان ہم نے کس طرح سے گزارا فیصل، اور اس سے بھی پچھلا رمضان جب پابندیاں تھیں، اور وہ پابندیوں والے جو رمضان تھے، یقین کریں وہ ایک دل سے وہ ہوتی تھی کہ پلیز جلدی سے یہ کووڈ والا ماحول ختم ہو اور ہم اس پینڈیمک ماحول سے نکل کے اپنی معمول کی زندگیوں پر واپس آئیں. بالکل، تو اس پہ بھی ہوگی بات. اس کے علاوہ شو میں آج آپ کی ایسے والد سے ملاقات کروائیں گے جنہوں نے اپنے مقتول بیٹے کے لیے مثالی قدم اٹھایا ہے. کون سا وہ قدم ہے، اس پہ بھی ہوگی بات. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. پاکستان میں تعلیم کا معیار کیسا ہے، اور کیا آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت پاکستان میں بچوں کو ان کا حق مل رہا ہے یا پھر نہیں. ان سب پر ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جس چیز پہ بات کریں لیکن سب سے پہلے سے بھی پہلے یار یہ آپ کیسے بھول سکتی ہیں، یہ کیسے بات نہیں ہوگی. ریکارڈ چیز کیا ہے بھائی کل، مطلب کہ 2 دن پہلے جو لوگ بابر اعظم کو کرٹیسائز کر رہے تھے، کل بابر اعظم نے اپنے بیٹ سے اور پاکستان کی جیت سے ان کو جواب دے دیا ہے. امام الحق نے بھی کمال کر دیا ہے. لگاتار 2 میچز میں وہ پہلے پاکستانی بن گئے جنہوں نے آسٹریلیا کے خلاف سینچری سکور کی. ریکارڈ در ریکارڈ. لیکن سب سے پہلے کل ہماری ویسے دعائیں قبول ہو گئی نا، جو ہم نے پروگرام کے لاسٹ میں مانگی تھی کہ ہماری کرکٹ ٹیم بہت اچھا کھیلے. اگین سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کی سیاست کی، جہاں پر ایک میچ چل رہا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ میچ ہے، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی وکٹ گری، ابھی کسی کا چوکا لگا، ابھی کسی کا چھکا لگا. خالد صاحب کی بات کرتے وزیر اعظم عمران خان کو غیر ملکی دھمکی کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں غیر ملکی عہدیدار کا پیغام پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا گیا. کمیٹی نے غیر ملکی پیغام اور اس میں استعمال کی گئی زبان پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا. بڑی ہی گمبھیر صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال میں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے کیا ہے ٹویٹ. کہتے ہیں پوری قوم ہفتے کے دن وزیر اعظم کے اہم پیغام کے لیے تیار رہے. اب یہ پیغام کیا پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ تو ہفتے کو ہی پتہ چلے گا. تو فیصل جاوید کا یہ ٹویٹ، اور جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پوری قوم جو ہے سیٹرڈے کو تیار رہیں، اور جناب ہفتے والے دن ایک اہم پیغام بھی ملے گا. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن سے گفتگو کرنے کے لیے. پاکستان کی سیاست میں ویسے یہ 3.5 سال گفتگو کی کیفیت رہی، اور جس طرح اس طالب علم کو کہا جاتا ہے 2 سال اور محنت کر لو تو آگے پھر زندگی آسان ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ بتایا جاتا رہا کہ جی آپ فلاں اتنا ٹائم انتظار کر لیں، اس کے بعد حکومت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اب مجھے بتائیے آسانی کس کے لیے ہے، مشکل کس کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر. آپ نے ابھی کرکٹ ٹرم یوز کی. دیکھیے پاکستان میں جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے، وہ ایک زمانے میں ٹیسٹ میچز ہوا کرتے تھے جو اس وقت تک جاری رہتے تھے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے. وہ 4 یا 5 دن کے نہیں ہوتے تھے.
कई दिनों के होते थे जब तक मैच ख़त्म ना हो जाए। तो ये मैच तो जारी रहा है, पाकिस्तान की सियासत का मैच ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। सही। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो ज़ाहिर है कई लिहाज से संजीदा है। आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ गया है, ख़ास तौर पे पिछले चंद माह में जी। सूरत हाल डेवलप हुई है, उसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम। अब जिस तरह भी आपने फैसल जावेद साहब की ट्वीट की बात की, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ये भी अपील कर सकते हैं कि लोग इस्लामाबाद पहुँचें, क्योंकि इतवार के रोज़ जो है वो वहाँ वोटिंग होगी। जी और जो नंबर गेम्स हैं उसमें तो गवर्नमेंट बज़ाहिर बहुत पीछे रह गई है, जी जी और लगता नहीं है कि वो नंबर गेम्स अब कैच कर पाएंगे। जी जी तो लिहाजा एक ऐन मुमकिन है कि कोई पब्लिक प्रेशर की बात हो, ज़्यादा एक तरीके से सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। सही। अब मैं तो जो फैसल जावेद साहब ट्वीट है उसका मतलब तो मैं यही समझा हूँ कि वो पैगाम यही हो सकता है। ठीक है। अब ऐन मुमकिन है कि कुछ कोई दूसरा पैगाम भी हो, लेकिन सही है। क्योंकि वो पैगाम तो उन्होंने अपनी जो खिताब है वो कर दिया था। मैंने कल भी ये बात की थी कि बहुत बेहतर होता कि ये खिताब पार्लियामेंट में वो आके करते, क्योंकि पार्लियामेंट में बकौल जिन किरदारों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो किरदार पार्लियामेंट में मौजूद थे, और वो उनकी तरफ वो कर सकते थे, अपने इत्तेहादियों की तरफ इशारा कर सकते थे। कुछ साबका हो गए हैं, कुछ अभी भी हैं, उन मुनर्रफीन की तरफ भी इशारा कर सकते थे। तो पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम था, और जाहिर है उनका खिताब उसी तरीके से नेशनल हुक्म पे जाता जिस तरीके से जैसे कल उन्होंने खिताब किया है। जी क्योंकि माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अप्रैल 77 में इसी तरह का खिताब किया था पार्लियामेंट के अंदर, जी और कि उनके ख़िलाफ़ उनकी गवर्नमेंट को जो है गैर मुस्तहकम करने की साजिश हो रही है, बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। जी अब जहाँ तक उनके उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का ताल्लुक़ है, वो तो ज़ाहिर है ऑफ़िशियली उन्होंने कम्युनिकेट भी कर दिया है। जो लेटर जहाँ तक सुना है कि वो लेटर डिलीवर हो गया है, जवाबी ख़त। मैं पूरी तरीके से तस्दीक तो नहीं कर सकता, जी जी लेकिन कल कुछ ख़बरों में चल रहा था। लेकिन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ज़ाहिर है हमें अपने अपने इंटरेस्ट में ये देखना होगा कि इसके अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि सही। ज़ाहिर है अमेरिका से जब आपके ताल्लुकात में सर्दमोरी आती है जी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप पे नहीं होता, जी उसका फिर ताल्लुक़ फिर IMF से भी बन जाता है, फाइनेंशियल उससे भी बन जाता है। आप पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में हैं, जी हाँ। तो बहैसियत एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे, अब मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है कल जो मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जी उसमें इसके अलावा और क्या-क्या जो है वो ग़ालिबन गौर किया गया होगा कि इसके पॉसिबल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, और क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। सही। लेकिन अंदरूनी सियासत जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो ये नंबर गेम हार गए हैं। लेकिन ये जो मौक़िफ़ है उनका, जिसका इज़हार उन्होंने कल किया है, ये यकीनन उनके उस सियासी बयानिए का हिस्सा होगा जब भी आइंदा इंतख़ाबात होते हैं, चंद माह में होते हैं या साल भर में होते हैं, तो ये उनका सही। बयानिया जो है यही वो लेके लोगों में जाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि वो अगर इतवार को उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, जी जी तो वो इसी बयानिए को अवाम में लेके जाएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, एक ऐसा टेम्पो बिल्ड करेंगे कि उनको एक गैर मुल्की साजिश के तहत जो है वो सही। बाहर निकाला गया है। ठीक है। मज़ा साहब सवाल लीजिएगा कि जैसे आपने कहा ऐन मुमकिन है तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, एक नया गवर्नमेंट का सेटअप आता है, इन फ्यूचर आप उस नए गवर्नमेंट के सेटअप को कैसा देख रहे हैं? जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश है, निपटने में कामयाब हो सकती है? देखिए, ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो वो उसके बाद स्पीकर जो है वो सदर को लिखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म उनको डी-नोटिफ़ाई कर दिया जाए, और उसके बाद वही हाउस एक नए लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतख़ाब करेगा। अब इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मेजॉरिटी लूज़ कर जाएगी, अगर कर गई, तो फिर वो एक बहुत इफ़ेक्टिव अपोजिशन के तौर पे भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और एक नया सेटअप जो बनेगा, अब उसमें देखना है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने क्या उसमें प्लान किया है। उसमें फ़ौरी इंतख़ाबात, चंद माह में इंतख़ाबात हैं,
یا وہ اس پورے ٹینیور کو سال 1.5 سال کے ٹینیور کو پورا کریں گے. ایک عام رائے یہی پائی جاتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر کروا دیے جائیں. لیکن اس میں ایک ہچ آئے گی, اور وہ یہ آئے گی کہ جو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں اب, وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے تحت ہوتے ہیں. یعنی اگر اس وقت اسمبلی کوئی نیا قائد ایوان منتخب کرے گی تو وہ قائد ایوان صرف چند ماہ کے لیے ہوگا. اس کے بعد جب نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ جو نیا سیٹ اپ بنے گا یہ پھر سیٹ اپ ختم ہو جائے گا, اور اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس اور اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پھر مشاورت سے ایک نئے قائد ایوان, ایک نئے انٹرم پرائم منسٹر کا پہ مشاورت کریں گے. اگر ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نامزد کریں گے نئے وزیر اعظم کو جو کیئر ٹیکر ہوں گے. اس کے تحت ظاہر ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی ہوں گے. تو پاکستان میں لگتا یہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ تقریباً سال بھر اور رہے گا, اور صورتحال پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ ایک غیر یقینی صورتحال میں ایک سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں آپ کوئی معیشت کے بارے میں کوئی ٹھوس اقدامات کر سکیں. تو پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً جو اس وقت ایک غیر یقینی کسی کیفیت پیدا ہوئی ہے, اس پہ فیصل جاوید کا ٹویٹ, تو اب تمام تر نظریں ہفتے کے دن ہے کہ وہ کیا اعلان, کیا پیغام, کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اتوار کے دن, کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور اس حوالے سے شیخ رشید صاحب بھی کئی مرتبہ بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں, فیصل جاوید نے بھی اب ٹویٹ کیا, تو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. تحریک عدم اعتماد سے کیسے نمٹا جائے, وزیر اعظم عمران خان آج قانونی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کریں گے. آئندہ کا لائحہ عمل طے ہوگا. عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے خصوصی عباس شبیر سے. عباس, ڈیٹیلز شیئر کیجئے گا. جی بالکل, ایک اہم اور مصروف ترین آج بھی وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں گزاریں گے. 12:30 بجے سیاسی کمیٹی کا اجلاس جس کی وہ خود صدارت کریں گے. تمام سینئر قیادت کو بھی آج وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا ہے. عدم اعتماد, قومی اسمبلی کا اجلاس اور دیگر سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی. اس کے بعد وزیر اعظم نے آج آئینی اور قانونی ماہرین کو بھی مشاورت کے لیے وزیر اعظم طلب کیا ہے. 2:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے تمام لائر, جس میں عدم اعتماد کو کس طریقے سے قانونی طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, کیا اس کے اوپر عدالت سے رجوع کرنا ہے اس معاملے پر جو کہ دھمکی آمیز خط ہے, اس حوالے سے تفصیلی طور پر مشاورت ہوگی اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا. یہ بتایا گیا ہے کہ اور بھی اہم ملاقاتیں آج وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں کریں گے, جس میں آئندہ کے لائحہ عمل, قومی اسمبلی میں عدم اعتماد اور سیاسی صورتحال پر تمام سینئر قیادت آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے, کیونکہ وقت ہے اہم فیصلوں کا. اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے اور اہم مشاورت بھی آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. ٹھیک ہے عباس, آپ کا بہت شکریہ. تو عمران خان نے خط ہوا میں لہرایا, سب کو دکھایا, دھمکی کا بتایا. اپوزیشن حلقوں سے الگ الگ رد عمل بھی آیا. کسی نے الزام لگایا خط خود ہی تیار کروایا, تو کسی نے اسے فراڈ کہا. اپوزیشن رہنماؤں کا خط سے متعلق رد عمل آپ کو سنواتے ہیں. میں الزامات نہیں لگا رہا, یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں, لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں, میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں, دکھائیں. یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے. جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے, اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں. ہمیں دھمکی دی گئی ہے. ہمارا جو انفارمیشن ہے کہ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. بین الاقوامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے, کوئی نیا چورن دیکھیے. اودا پہاڑ اور نکلا ایک خط کی فوٹو کاپی. کسی راہ چلتے نے ان کے ہاتھ میں کوئی فوٹو کاپی دے دیجیے. آج سنا ہے اس نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہے, پرچی نکالی ہے. مجھے تو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. دماغ خراب ہے کسی کا تمہیں صحیح کروانے کے لیے. میں پڑھ کے سناتی ہوں اس خط میں کیا ہے, دھیان سے سننا. عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایک عالمی سازش تیار کر رہے ہیں, اور اس عالمی سازش
साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं ताकि सनद रहे हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा के दिखाएं। मनजानिब आलमी ताकतें लिख के हमें धमकी दी गई है। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियां दे। उन्होंने अपने आप को आपके लेवल पे लाना है, तो वो क्या चीज़? आप दूसरी तरफ जरा बात करते हैं, यानी हुकूमती रहनुमाओं की तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के मुखालफीन पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। वो कह रहे हैं कि सिंध हाउस अचानक जमीर जागने का मरकज बना हुआ है। समझ नहीं आती जमीर फरोश अपने घर वालों का सामना कैसे कर रहे हैं। सिंध हाउस ज़मीर जागने का एक मरकज बन चुका है। जो सिंध हाउस जाता है उसका ज़मीर जाग जाता है। वहाँ टेंट लगाया गया है। टेंट के उस तरफ ज़मीर जागने का प्रोग्राम है और टेंट के इस तरफ वो लोग हैं जो अपने कॉल और फेल पे खड़े हुए हैं अभी तक। जो गए हैं टेंट के उस तरफ अपने ज़मीर को बेचने। मुझे समझ नहीं आता कि अपने घर वालों को कैसे फेस करेंगे। कल तक इमरान खान बेहतरीन आदमी था, आज रात अचानक से उनका ज़मीर जाग गया और उन्हें पता चला कि वो तो बड़ी गलती पर थे। पहले भी MQM पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप का मजा चख चुकी है। ये एक अनहोली अलायंस है। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये MQM और पीपल्स पार्टी का अलायंस बना है। ये बहुत शॉर्ट टर्म होगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान MQM को उठाना पड़ेगा। इसके तमाम फवाइद जो हैं वो पीपल्स पार्टी को हासिल होंगे। MQM के वोटर को इससे कख भी नहीं मिलना। अंजाम नतीजा जो भी हो, पाकिस्तान की कौम इस वक्त बड़े गुस्से में है और वो वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है। अपोजिशन के कई सरकर्दा लीडर साजिश से आशना है। अगर पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल और खतूत पे चलाने का इनका ख्वाब है, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, वो ये कौम पूरा नहीं होने देगी। वो इनका ये ख्वाब है। तो सियासत पे तो हम आगे भी बात करते ही रहेंगे। वैसे मैं इस हुकूमत को कई चैलेंजेस दरपेश थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सामना भी किया। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कोविड का था, जो कि पूरी दुनिया को था और इस हुकूमत को भी था। लेकिन फिर हुआ क्या कि हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, कौम ने मिल के साबित किया कि हम अगर एकजुट हो जाए तो वबा को भी हम हरा सकते हैं। तो कौम को कोरोना की ख़तरनाक वबा से बचाने वाला नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाइनली डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। जज्बा खिदमत और एहसास ज़िम्मेदारी के तहत काम करने वाले NCOC ने कोरोना से आगाही, ज़रूरी पाबंदियों और वैक्सीनेशन के ज़रिए पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचाए रखा। अरहम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन इस पर डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारक मैं देना चाहूँगी एंड साथ ही आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की मेहनत और काविश आज हम इतनी बड़ी चीज़ से निकल आए सेफली। हमने इसमें कुछ ऐसे भी मरहले देखे जिसमें हम अफसुर्दा हुए, लेकिन यकीनन आप लोगों की मेहनत पीछे है इसके जो रंग लाई और आज हम यहाँ पर बैठे हैं और आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये मुझे बताएगा कि जब इस बनाया गया इस सेंटर को, NCOC को जब बनाया गया, तो वो चीज़ें, क्योंकि यकीनन वो एक बड़ा कड़ा वक्त था, मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, निमटने के लिए क्या सोच थी इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपके अच्छे कलमात का और आपके शुक्रिया का। सच बात तो ये है कि ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमत कर सकते। तो ये NCOC एक इस काम के लिए बहुत अहम प्लेटफॉर्म बना। और जब ये शुरू हुआ तो जैसे आपने बजा कहा कि बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं थी। ये बीमारी कहाँ है, कैसे है, किधर है, क्या इसका अंदाज़ होगा। कुछ चीज़ें मालूम थी, कुछ चीज़ें हम दीगर ममालिक के एक्सपीरियंस से देख रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें अननोन थी। ऐसी सूरत हाल में एक जगह पर बैठकर, एक कमरे में बैठ के और सिविल सारी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके साथ उसको सपोर्ट हासिल थी हमारी एयर डिफेंस कमांड की मिलिट्री कंपोनेंट की, जिसमें उनके मुख्तलिफ अफसरान शामिल थे। फिर सिविलियन साइड के ऊपर प्रोविंसेस के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के साथ, उसके अलावा NDMA के साथ, उसके अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उनके साथ एक लगातार राब्ता था। मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई ही शायद मिनिस्ट्री हो इस हुकूमत की जिसको इस एफर्ट में शामिल ना किया गया हो, या उसका मशवरा ना लिया गया हो, या उसकी मदद ना ली गई। तो ये एक मिलजुल के ना कोऑपरेशन, अगर एक लफ्ज़ में मैं इस्तेमाल लफ्ज़ कर सकूं तो कोऑपरेशन से, तावन से और कोऑर्डिनेशन से ये सेंटर चला। और इसको लीड किया असद उमर साहब ने, जो कि प्लानिंग के हमारे मिनिस्टर है, और उनकी जो साबका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था वो इसमें बहुत हमें काम आया। उन्होंने इसको लीड किया।
اور باقی جو ہم ساتھی باقی سارے لوگ تھے انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سارا ملک اکٹھا ہو جائے اور ایک مربوط طریقے سے, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ہم ارتھ کویکس میں دیکھ چکے ہیں, فلڈز میں دیکھ چکے ہیں. جب بھی دنیا نے سوچا کہ یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے ترقی پذیر جو ایسے چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکے گا, لیکن جہاں ہم اکٹھے ہو جائیں اور آرگنائز ہو جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں جسے کہتے ہیں رزلٹ بخشا ہے. تو میں بہت خوش ہوں کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ رہی. زبردست ہے سر. مجھے اب یہ بتائیے, اوبویسلی کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, تو ابھی بھی کام ہے بہت, لیکن فائنل جب یہ ڈیزالو ہو رہا ہے تو آپ ہمیں کیا اسٹیٹسٹکس, کیا فگرز دے کے جا رہے ہیں کہ اتنے % آبادی ہماری ویکسینیٹ ہو گئی ہے, اتنے % لوگ رہ گئے ہیں؟ اچھا, ایک تو اس میں براڈ بتا دوں جو کہ ہماری ایلیجیبل پاپولیشن ہے, یعنی 12 سال سے زیادہ کی جس کو ہم ویکسین لگا رہے ہیں, اس میں تقریباً 77% سے زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے, اور تقریباً 90% کے قریب ہے وہ پاپولیشن جن کو کم از کم ایک ڈوز لگ چکی ہے. تو ظاہر ہے کچھ پاپولیشن تھوڑی سی رہتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی روزانہ آج کل ویکسین لگ رہی ہیں, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے یہ 80% آرام سے انشاءاللہ اس کو کراس کر جائیں گے, بلکہ 85, اور ہو سکتا ہے کہ ہائی 80s میں بھی یہ چلی جائے. تو یہ تو ایفرٹ جاری ہے. لیکن میں ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بڑی آپ نے اہم بات کہی کہ کام کچھ تو ہو گیا لیکن کچھ کام باقی ہے. اچھا, اس باقی کام کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی آنے والی وبا جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سسٹم میں ایک بنی بنائی طاقت موجود ہونی چاہیے. جی, وہ بنی بنائی طاقت ہمارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, قومی ادارہ صحت کے اندر ایک سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, جس کا مخفف CDC ہے, بنایا گیا ہے. اور اسی سینٹر کے جو لوگ ہیں انہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے NCOC کے سٹاف کے ساتھ بیٹھ کر جو انہوں نے چیزیں سیکھی تھیں پچھلے 2 سال میں, اس ساری لرننگ کو اڈاپٹ کیا ہے. اور آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج صبح بھی مجھے اسی طرح سے رپورٹ ملی ہے جیسے NCOC کے تھرو آتی تھی, وہ اپنے NIH کے تھرو آئی ہے, اور اس میں وہی اعداد و شمار اور اسٹیٹسٹکس جو ہم ٹریک کر رہے ہیں وہ ہمیں سامنے آ رہے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ یہ ایسی چیز بن جائے جس میں ہمارے پاس ایکسپرٹس اور کوآرڈینیشن کی وہ کیپیبلٹی مکمل طور پہ پرماننٹ طور پہ بن جائے جو ہم نے NCOC میں جلدی میں ایمرجنسی میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. یہ پلیٹ فارم ڈیزالو ہو رہا ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے بھی خود کو ویکسینیٹ نہیں کروایا اور اب چاہ رہے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کروا لیں, تو کیا وہ ویکسینیشن ادارے, وہ جگہیں جہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہیں, وہاں پر سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ لوگ جائیں گے اور ڈرائیو تھرو یا جس طرح سے بھی آپ جائیں اور جا کے خود کو ویکسینیٹ کروا لیں؟ فی الحال تو جی تمام جگہ جہاں ویکسینیشن چل رہی تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے, لیکن جو فوکس ہے نا اس کا وہ اب موبائل پہ زیادہ ہو گیا. موبائل ویکسینیشن سے مراد یہ کہ ہم گھر جا کے لگا رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے خود لگوانی تھی 1 ڈوز 2 ڈوز اور پھر بوسٹرز بھی, وہ آ کے جو فکس سینٹرز ہیں وہاں وہ لگوا چکے ہیں. اب اس میں آہستہ آہستہ کسی پوائنٹ کے اوپر ہمیں ایسا اس کا طریقہ کار کر دینا پڑے گا کہ کوئی فون کال کر کے منگوا لے یا جو فکس سینٹرز ہیں وہاں جا کے کر لے. تو یہ سب کچھ تو ہو ہی گیا ہے. اب اس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جوں ہم ایسے سچویشن میں آتے ہیں جہاں تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے ان لوگوں کی جن کو ویکسین لگنے کی ضرورت ہے, تو پھر جو کچھ سینٹرز ہیں ان کی جو تھرو پٹ ہے, جو کیپیبلٹی ہے, اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیا جائے گا تاکہ اس میں پیسے ضائع نہ ہو لیکن وہ فیسلٹی اویلیبل رہے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شارٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو موبائل ویکسینیشن ہے یہ بھی اسی طرح فری آف چارج ہی رہے گی؟ جی یہ فری آف چارج ہی چل رہی ہے. یہ ویکسینیشن کا سارا جو عمل ہے یہ حکومت اس کا خرچہ برداشت کر رہی ہے, ویکسین خریدی بھی ہیں اور جو گاوی کے تھرو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگلا سوال میرا یہ ہے, تھوڑا سا میکرو لیول پہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا, ہمیں کہا گیا, بلکہ صرف ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا میں جو نظام صحت تھا, جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم تھا, یو میں ٹاک اباؤٹ یورپ یا پھر ایشیا میں یا کہیں بھی, نظام صحت بیٹھ گیا, اس کا بھٹھا بیٹھ گیا, اتنی بری وبا تھی یہ. ہم نے اس پینڈیمک سے بطور پاکستانیز, بطور ایڈمنسٹریشن آف پاکستان کیا سیکھا؟ اگر خدا نہ خواستہ آگے, کیونکہ ہم اپنے ہسپتال اوور نائٹ اتنے زیادہ تو نہیں بنا سکے, نہ ہم آگے شاید بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, تو ایسی وبا خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ بریک آؤٹ ہوتی ہے, ہم نے پاکستانیوں نے, پاکستان کی انتظامیہ نے کیا سیکھا ہے اس سے کہ اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ اچھے سے کیسے نمٹا جا سکے گا؟
बिल्कुल सही जी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमने अपने बेड्स की और हॉस्पिटल्स की कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा किया। 7,000 बेड तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प से बने, उसके अलावा प्रोविंसेस ने अपने एडिशनल बेड्स बनाए। तो हमेशा बेहतर ये होता है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को, जल्दी में जब किया जा रहा हो तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को अपग्रेड किया जाए। ये बहुत मैसिव अपग्रेडेशन हुई है, एक बात। दूसरा, स्टाफ की ट्रेनिंग। इस सारे प्रोसेस में नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के वर्कर्स, ये सारे लोग बहुत ट्रेन हुए, तो वो ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर मौजूद है। तीसरी बात, ऑक्सीजन। आपने देखा हमसाया मुल्क में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी इंडिया में, और वो इस वजह से कि डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आ गए थे। तो हमने अपने ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी बेहतर फराहमी के लिए जगह जगह जिसे कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर किया, उसके ऊपर अदाद शुमार इकट्ठे किए, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स लगे हैं। तो बल्कि जो आज सुबह ही मुझे वो रिपोर्ट उसकी फाइनल मिली कि जितने भी डोनेटेड प्लांट्स हमें आए थे वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं, जो एक इदारे से आए थे। तो कहने का मकसद ये कि हॉस्पिटल्स की तैयारी या इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन अगर आप इससे भी लॉन्ग टर्म देखें, इससे भी जरा हट के देखें, तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनकी रेगुलेशन के लिए एक्ट पास हुआ है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को बहुत हैवीली रिफॉर्म किया गया है बेहतर सर्विसेज के लिए, बेहतर डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल्स की। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का जो एक्ट है वो इस वक्त सेनेट में पड़ा है अप्रूवल के लिए। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स की काबिलियत जो है उसको एक और हायर लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया एंड अगेन थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। और जितनी काविशें और जितनी तारीफ और जितना हम अप्रिशिएट करें उतना ही कम है। और जैसे कि फैसल डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स का, हमेशा ये देखा गया कि कौमें तभी तरक्की करती है जब उनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। शॉर्ट टर्म ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो या औरत, सबकी बुनियादी ज़रूरत है और ये हक़ है। और पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 25A के तहत तो तालीम फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। आइन रियासत को इस बात का पाबंद करता है कि वो मुकर्ररा कानून के अंदर रहते हुए 5 से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम मुहैया करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में आइन के मुताबिक बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है? और अगर मुफ्त तालीम मिल भी रही है तो इस तालीम का मयार कैसा है? क्योंकि तालीम का मयार अच्छा होना, बेहतर होना, ऐसी तालीम के आप तालीम हासिल करके इंटरनेशनली चीज़ों को बीट कर सके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूल्स का मयार कैसा? एग्जैक्टली कि स्कूल्स के अंदर का माहौल कैसा है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सोशल वर्कर है ज़ियाउर रहमान साहब। ज़ियाउर रहमान साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि मैं और मेरे साथी एंकर भी बात करें कि ठीक है, एक तो ये चीज़ कि तालीम मिल रही है, लेकिन दूसरी बुनियादी ज़रूरत है कि तालीम का मयार कैसा है। आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप क्या माहौल देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि वो चीज़ जो कि पाकिस्तान के बच्चों का हक है वो उन्हें मिल रहा है या नहीं? बहुत शुक्रिया। पहले तो देखें, इस वक्त हम 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हैं और हमारे यहाँ कोई तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख बच्चियाँ ऐसे हैं जिनकी उम्रें कोई तकरीबन 5 साल से लेके 16 साल तक हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25A के तहत ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि 5 से 16 साल तक के बच्चों और बच्चियों को फ्री और लाजमी तालीम जो है वो दी जाए। अब 6 करोड़ 30 लाख बच्चों और बच्चियों में से कोई तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और कोई 1 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चे और बच्चियां जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और वो प्राइवेट स्कूल भी बहुत ज़्यादा वो तादाद है जो पैफ के स्कूल हैं या पीमा के स्कूल हैं या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूल हैं, यानी छोटे स्कूल जो हैं। जो एलीट स्कूल हैं उसमें शायद 4-5 लाख बच्चा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जाता हो या इससे भी बहुत कम जो है वो तादाद जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया ये है वो कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों में जाते ही नहीं हैं, वो कहीं एनरोल नहीं हैं, वो घरों में हैं या
सोसाइटी में किसी न किसी जगह के ऊपर एंगेज्ड हैं। अब उसमें जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये कि 1 करोड़ 20 लाख जो है वो लड़कियां हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। पहला तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें बहरहाल हाईलाइट करना, और हम बड़ी शद्दोमत से हर फोरम पे जाके इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं कि हमें अगर तालीम को अपना एक प्रायोरिटी देनी है तो कम से कम उन बच्चों और बच्चियों तक जो है वो हम तालीम की रसाई को मुमकिन बनाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है रसाई के बाद, वो आपने जिस तरह हाईलाइट किया, वो है क्वालिटी का। तो हमें ये समझ में आती है कि क्वालिटी जो है वो किस चीज़ से आएगी। क्वालिटी आएगी जब आप स्कूलों के अंदर अच्छे असातिज़ा कराम देंगे। अब हम सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो हमें नज़र आता है कि 1 लाख टीचर्स जो हैं जो स्कूलों में होने चाहिए थे, उनकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। और ये इतने अरसे से ये उनके ऊपर भर्ती जो है वो नहीं हो रही। इसी तरह दूसरे सूबों के अंदर भी यही हालात हैं। तो हमारी प्रायोरिटी चूँकि एजुकेशन है नहीं, तो फिर हम असातिज़ा कराम को वहाँ कैसे भर्ती करेंगे, और जब उस्ताद नहीं होगा तो क्वालिटी जो है वो कैसे सफ़र नहीं करेगी। बहुत सारे स्कूलों के बारे में हमें ये इतलात मिलती हैं कि वहाँ पर असल जो उस्ताद है वो कहीं और काम कर रहा है और उसकी जगह के ऊपर उसने ख़ुद से ही अपना एक रिप्लेसमेंट दे दिया है, जो सैलरी तो उस उस्ताद से लेता है और उस्ताद साहब जो है वो सरकार से लेते हैं। तो मतलब ये कि क्वालिटी कैसे आएगी। और फिर जाहिर है कि अगर हम ये देखें कि स्कूलों के अंदर जो बाकी सहूलतें हैं वो किस सतह की हैं, फर्नीचर नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, पानी और वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, और लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि 4 दीवारी और वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइमरी की सतह तक बच्चियों की एनरोलमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे वो क्लास में आगे बढ़ती हैं, 6ठी क्लास में जाती हैं, 9th और 10th क्लास में जाती हैं, तो फ़िज़िकल चेंजेस होती हैं, बॉडीली चेंजेस होती हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मसाइल होते हैं। तो होता ये है कि माँ बाप जो है वो बच्चियों को स्कूलों से हटा लेते हैं जैसे ही बलूगत आती है। हमारी इतलात के मुताबिक हमारी जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि कोई 10% के करीब बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल छोड़ जाती हैं बलूगत के शुरू में, और कुछ 7% से के करीब बच्चियां जो हैं जिनकी 9th और 10th के अंदर शादी हो जाती है। तो अर्ली एज मैरिज भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तो ये हम क्योंकि सहूलतें पूरी नहीं दे रहे, क्वालिटी बेहतर नहीं दे रहे, तो लोग जो है वो स्कूलों की तरफ रुख कम कर रहे हैं। जितने मसाइल आपने गिनवाए हैं मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी मज़ीद मसाइल भी हैं। गोस्ट स्कूल्स एक बहुत बड़ा मसला है। गोस्ट असातिज़ा आपने ख़ुद जिक्र कर दिया, वो एक बड़ा इशू है। टीचर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इशू है। कहीं यहाँ ये बल्कि ये तो मजाक सा बन के रह गया है कि कोई असातिज़ा यहाँ फवारा चौक पे कराची में प्रोटेस्ट करने आते हैं, उनसे हमारे नुमाइंदगान जाके पूछते हैं कि एजुकेशन की स्पेलिंग बता दें, तो वो स्पेलिंग तक नहीं बता पाते हैं। ये तो मामलात है जनाब। तो इसमें जब इतने सारे मसाइल हों और जब ये आइन आपको कह रहा हो कि जी आपने 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम देनी है, क्या ड्राफ्ट करते वक्त ये नहीं सोचा गया था कि हमारे पास ये सिस्टम भी है इस आइन की शिक को सपोर्ट करने के लिए? क्या हमारे पास स्कूल्स भी है, और सिस्टम से हट के क्या हमारे पास विल भी है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, सिंध में आपने देखा, पंजाब में हमने देखा, बेसिक हेल्थ यूनिट से लेके सरकारी स्कूल तक भैंस के कट्टे बांध दे करते हैं। तो आपको ये चीज़ें कब ठीक होती नज़र आ रही हैं? देखें, ये तो उस वक्त ठीक होंगी जब हमारी हुकूमतों की, हमारी रियासत की प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन बनेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए ये देखा नहीं जा सकता कि रियासत के पास वसाइल हैं या नहीं हैं, रियासत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो इंसानी हक़ के तहत दिया जाता है, और उसमें ज़ाहिर है कि हम बहुत सारे दुनिया के कवानीन को भी फॉलो करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत राइटली दिया है ये हक़, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत राइटली इसके ऊपर जो है वो आज से 12 साल पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो दिया गया। और उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने, जिस तरह सिंध की हुकूमत ने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है वो फौरी तौर पे बनाया और उसको लागू भी किया। अब
उस एक्ट के होने के बावजूद वहाँ पर तालीम की हालत क्या है, ये इस पे मैं अभी इतनी रिफ्लेक्शन नहीं डालना चाहता, वो आप सब लोगों को अंदाज़ा है। लेकिन पंजाब में तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो है वो 2012 में असम्बली ने पास किया, आज तक उसको लागू ही नहीं किया गया। सही है। मतलब आप ये देखें कि 2014 में पास किया, तो आज तकरीबन 8 साल हो गए हैं। हमें ये लगता है कि वो अभी तक उसके ऊपर इकदाम नहीं हुए। फेडरल गवर्नमेंट ने ज़ियाउर रहमान साहब, वो इस मामले पर 2012 जितनी बात उतनी कम है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्तकबिल के बारे में कोई सोचता नहीं। बेहद शुक्रिया, मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कराची से आपको खबर देंगे, शारा फैसल पर तामीर होने वाले नस्ला तार को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया गया है। तारीखी सर्विस रोड भी खुल गई है। शारा फैसल को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से मिलाने वाला सर्विस रोड नस्ला तार मिसमार करने के बाद कैसा लगता है, कैसा नजर आता है, साथ साबरी से जानते हैं। जी साहब। जी, मैं इस वक्त जिस रोड पे चल रहा हूँ, ये वो सर्विस रोड है जो कि शारा फैसल को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से मिला देती है। मगर ये कोई आम सर्विस रोड नहीं, बल्कि वो तारीखी सर्विस रोड है जिसकी वजह से 15 मंजिला नस्ला टावर को मुनहदिम कर दिया गया था। मेरे कैमरामैन इमरान खान आपको दिखाएंगे, एंड ये वो जगह है जहां आके ये सर्विस रोड बंद हो जाया करती थी, क्योंकि इसके आगे आलिशान नस्ला टावर की इमारत मौजूद थी। मैं अपने कैमरामैन फैसल आगाई से कहूँगा, ज़रा फ़ज़ाई मनाजिर की मदद से वो जगह दिखाएं जहां पर नस्ला टावर की इमारत थी, और आज यहाँ पर एक वसी ज़मीन का टुकड़ा नज़र आता है। मनो मट्टी का मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ मौजूद जो नस्ला टावर की इमारत थी उसकी वजह से ये सर्विस रोड बंद थी। मगर अब ये सर्विस रोड खुल चुकी है। यहाँ पर अगरचे अभी गाड़ियों का गुजरना कुछ मुश्किल है, क्योंकि इमारत का कुछ मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। मगर इंतज़ामिया से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों में ये मलबा भी हटा दिया जाएगा, जिसके बाद इस सर्विस रोड से गाड़ियाँ बआसानी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और उसके आगे तक जा सकेंगी। जी, साथ साबरी आपको दिखा रहे थे द ईगल आइज व्यू। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद हाजिर होंगे तो मजीद अहम स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। जैसा कि शो के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना हम पर साया फगन होने वाला है। ऐसे में कराची के बाज़ारों में कीमतों का जो हाल है ना, वो क्या है महक? कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं या ज़मीन पर आ चुकी हैं? अवाम की पहुंच में चीज़ें हैं या अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं? खुर्शीद आलम जो मौजूद है इस वक्त एक बाजार में, उनसे बात करेंगे कि फल सब्जियों के भाव क्या हैं, अवाम खरीद रहे हैं या खौफ का शिकार हैं, और दुकानदार क्या कहते हैं। तो खुर्शीद आलम से जानते हैं। जी खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, कराची के बाज़ारों में हमने जाकर देखा तो मालूम ये हुआ कि किल्लत किसी चीज़ की नहीं है। बाज़ारों में सब्जियां, फल और अजनास वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। अब बात है कीमत की। रमज़ानुल मुबारक का महीना हम पर साया फिगन होने को है, और मुमकिन तौर पर इतवार या पीर को पहला रोज़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं फलों की, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि फ्रूट चाट बनना ज़रूरी है। तो कराची में इस वक्त जो खरबूजे की कीमत वसूल की जा रही है वो मुख्तलिफ इलाक़ों में है, लेकिन 60 से 80 रुपये किलो खरबूजा फ़रोख्त किया जा रहा है। और कम बेश यही सूरत हाल अगर हम उस कीनू की लें तो कीनू इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 250 रुपये दर्जन कीनू फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेब गोल्डन ईरानी, ये लाल रंग का सेब, ये 400 रुपये किलो है इस वक्त कराची में। और सेब कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो ये सेब कुल्लू 160 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और जनाब ये है वो केला, जिसकी कीमत वसूल की जा रही है 80 रुपये दर्जन। और कराची में तरबूज भी आ चुके हैं। ये तरबूज जिसका लाल रंग भी आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त कराची में 60 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तरबूज के मुख्तलिफ इलाक़ों में बड़े बड़े स्टॉल लग चुके हैं। खरबूजा हो, तरबूज हो, केला हो, कीनू हो, खरबूजा हो या कोई और फल, सब वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। इसी तरह सब्जियों में सबसे एक अहम चीज़ हम देखते हैं आलू, प्याज और टमाटर। टमाटर कराची में इस वक्त 80 रुपये किलो दस्तयाब है, जबकि आलू के दाम 40 रुपये किलो और प्याज के दाम भी 40 रुपये किलो वसूल किए जा रहे हैं।
ہماری مختلف گاہکوں سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے اسی اندیشے کا اظہار کیا کہ رمضانوں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جبکہ پھل والوں کا یہ کہنا ہے اور ٹماٹر والوں کا یہ کہنا ہے کہ قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کی کوشش تو کی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ طلب بڑھے گی تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ چلیں جی خورشید، آپ کا بہت شکریہ۔ ویسے بہت افسوس کی بات ہے یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو پاکستان میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ ابھی تو 80 روپے درجن مل رہا ہے اور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، اور جب شروع ہوگا جیسے اعلان ہوگا اس وقت یہ 80 روپے درجن کہاں جائے گا، یہ انہوں نے بتایا۔ میں کہہ رہا ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن انہوں نے پہلے بتایا اللہ نہ کرے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہماری مہمان تھی، یاد ہوگا آپ کو، مارشل آرٹس امید بانو۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے گلگت بلتستان کی ہی 2 جڑواں بہنیں ہیں، کامیابیاں جن کے قدم چوم رہی ہیں۔ ایک کا نام ہے ملیحہ اور ایک کا نام ہے منیشا۔ مارشل آرٹس میں بلیک بیلٹ ہیں اور مختلف مقابلوں میں اب تک مجموعی طور پر 6 گولڈ، 1 سلور اور 5 برونز میڈل اپنے نام کر چکی ہیں۔ اچھا یہ جو منظر ہے نا، مطلب کیا لوگ جم جاتے ہیں، لوگ اپنے روم میں کرتے ہیں، روف ٹاپ پہ کرتے ہیں، یہ جو پیچھے منظر ہے، ایسا منظر ہو تو مطلب بندہ دل جمعی سے کرے۔ پلیز مہک ڈونٹ اسپل دی بینز رائٹ ناؤ۔ لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا پرچم بلند کریں۔ تو ملیحہ اور منیشا دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملیحہ، منیشا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ذرا مجھے تھوڑی سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے، کب سے آپ نے شروع کیا، یہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں آگے؟ اوکے، تھینک یو سو مچ سمانیز کہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل ہم لوگوں نے اپنی کیریئر کی بگننگ 2014 سے کی تھی، جب ہم لوگ کلاس 8 میں پڑھتے تھے۔ ایٹ دا فرسٹ ہم نے یہ انسپریشن اپنے بڑے بھائی سے لی تھی جنہوں نے اپنی لائف سرو کی تھی ہیومینٹی کے لیے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے ہم نے مارشل آرٹس جوائن کی۔ ایٹ دا فرسٹ ہمیں کافی کرٹیسزم اور نیگیٹیوٹی کا شکار کیا گیا ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ایزیلی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں پر جو کہ لڑکوں کے لیے ہی نہیں ایکسیپٹ کرتے، تو لڑکیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ہم لوگوں نے یہ اسٹیریوٹائپس اور میتھس توڑنی تھی، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے مارشل آرٹس فیلڈ میں آئے۔ صحیح ہے جی صحیح ہے۔ اچھا ملیحہ، آپ یہ بتائیں، جیسے منیشا نے بھی کہا نا، ایک اسٹیریوٹائپ کی جو سوچ تھی اس کو ختم کرنا تھا، اس بیریئر کو بریک کرنا تھا جو کہ عموماً لڑکیوں کو سوسائٹی میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ وائی مارشل آرٹس؟ اسی کو ہی کیوں چوز کیا گیا؟ مارشل آرٹ ہمیں واحد یہ اسپورٹس اسی لیے لگا کیونکہ اس کے ذریعے ہم سوسائٹی میں انڈیپینڈنٹلی ایز لائک میلز موو کر سکتے تھے۔ اس کے ذریعے جس میں ہم سیکیور فیل کر رہے تھے، اس میں ہمارا سیلف ڈیفنس، فٹنس اور کانفیڈنس لیول آ رہا تھا تھرو مارشل آرٹس۔ کیونکہ سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی لڑکی سوسائٹی میں جاتی ہے تو عموماً گھر والے یا سوسائٹی کہتی ہے کہ ایک لڑکی کو اکیلے سوسائٹی میں نہیں نکلنا چاہیے، اس کے بھائی یا اس کے فادر اس کے ساتھ جائے، یہ ساری چیزیں۔ تو واحد martial art is the only sports which provide us the independency in our society, so that's why martial arts. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ گلگت کے کون سے ریجن سے بلونگ کرتے ہیں؟ ہم دونوں گلگت کے ہم لوگ گلگت میں ہنزا سے بلونگ کرتے ہیں، ہم دونوں ہنزا رحیم آباد سے۔ رحیم آباد یا ہنزا میں تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے غالباً، وہاں تو بہت اوپن مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گرلز ایجوکیشن پہ بہت فوکس کرتے ہیں، گرلز کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑی اس سوسائٹی میں بھی؟ جی، جب ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم سٹارٹ کی تھی تب وہاں پر پہلی بار ایک کلب کھلا تھا، وہ لڑکوں کے لیے کھلا تھا بلکہ وہ لڑکیوں کے لیے نہیں تھا۔ تو ہمارے اندر پہلے سے ڈٹرمنیشن اور پیشن تھی اس اسپورٹس کے لیے۔ تو ہم لوگ فرسٹ ٹائم ایڈمیشن لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ فار گرلز، اٹس اونلی فار بوائز۔ تو ہم لوگوں نے فرسٹ ریجیکشن فیس کی۔ سیکنڈ ٹائم ہم گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا اٹس ناٹ فار گرلز۔
हम वापस चले गए और थर्ड ट्राई में हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ओके यू कैन जॉइन अस। उसके बाद मैं और मलिहा ने वो मार्शल आर्ट क्लासेस ज्वाइन की, तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। इवन वो मार्शल आर्ट एक क्लब के फॉर्म में नहीं था, एक स्कूल के हम लोग ग्राउंड में खेलते थे। वहां पर ना हमारे पास वेल इक्विपमेंट्स थी और ना कुछ था, सिर्फ एक कोच था जो हमें ग्राउंड पे ट्रेनिंग कराता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हम लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की थी। ठीक है मलिहा, आप मुझे बताएं, चलें सफ़र तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जब सफ़र एक शुरू होता है तो ये भी पता होता है कि सामने बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारे चैलेंजेस है। ब्लैक बेल्ट हासिल करने में जो जो मुश्किलात आपने फेस की, जो जो चैलेंजेस थे, मैं चाहूँगी कि आप हमारी आवाम के साथ शेयर करें। बिल्कुल। फॉर द फर्स्ट, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो उस नेगेटिविटी को हमने कहा कि लेट्स कन्वर्ट द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी थ्रू आवर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड बिलीव इन आवरसेल्व्स। इस सारी जर्नी में हमारी जो कॉन्फिडेंस और हमारा पूरा कुछ ये क्रेडिट हम अपने फैमिली को देना चाहेंगे कि उनकी सपोर्ट की वजह से टुडे वी आर द फर्स्ट डान ब्लैक बेल्टर्स। और न सिर्फ सोसाइटी में न सिर्फ हम लड़कियां, बल्कि और बाहर मलिहा मनीषा और लड़कियों में हम देखना चाहते हैं, और सोसाइटी में और लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं। तो हम उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, न सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी सपोर्ट करें हर फील्ड में, जिस फील्ड में वो अपने कंट्री का नाम रोशन करना चाहते हैं और अपनी सोसाइटी को प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब कि इंटरनेशनली अब आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया में कहाँ पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करना चाहती हैं आप लोग? ओके, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रीम है कि हम पाकिस्तान के नेशनल एंथम हम सुने एक बाहर के मुल्क में। तो हम लोगों ने जब स्टार्टअप लिया तो तब हमें कोचेस अच्छे नहीं मिले, कभी कभार अच्छे मिले, फिर हमारी कभी ट्रेनिंग रह गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पार्ट ऑफ गेरीजन यूनिवर्सिटी दे प्रोवाइड अस वेल क्वालिफाइड कोचेस और अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद अभी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क, अभी तक हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये हमारा ड्रीम है। और अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो हम दो हैं तो दो पावर्स एक साथ, आपको पता है कि वी कैन अचीव। तो अगर हमें अच्छी तरह सपोर्ट किया जाए हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी की तरफ से, अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान का ड्रीम है वो ड्रीम नहीं रहेगा। और हम ओलंपिक्स में कम्पीट करना चाहते हैं, ताइक्वांडो हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स हो। जबरदस्त। और वो कहते हैं ना कि फैसल एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा मलिहा, मैं चाहूँगी लास्ट में उन लड़कियों को आप मैसेज दें जो कि कहते हैं ना कि ये तो इतना मुश्किल काम है, क्योंकि लड़कियां हमेशा सिन्फ नाजुक के तौर पे पहचानी और जानी गई हैं। तो जो लड़कियां करना चाह रही हैं और देख भी रही हैं आपको, क्योंकि आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से। अगर आज हम दो लड़कियां कर सकती हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान में हर पहली और हर दूसरी लड़की ये कर सकती है। अगर सोसाइटी में एक लड़की को ग्रूम होना है और सोसाइटी में इंडिपेंडेंटली मूव करना है तो शी मस्ट हैव टू जॉइन मार्शल आर्ट्स। और वेलकम टू द मार्शल आर्ट्स फैमिली टू एवरी गर्ल इन द कंट्री। ठीक है। अच्छा, और मुझे एक बार फिर आखिर में सिर्फ इतना सा बताते हैं, ये जो आप आउटडोर प्रैक्टिस शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पीछे एक पहाड़ मुझे नज़र आ रहा है, कौन सा है ये, मुझे बताएंगे? ओके, ये हम लोग कोविड के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ से लाहौर से मूव किया था हुंजा, क्योंकि आपको पता है उस पैंडेमिक में सारा कुछ बंद हो गया था। तो हमने सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सेल्फ ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट पे या फिर गर्ल्स को मोटिवेट करें। तो हम ये राकापोशी नजर आ रहा है जो हमारे पीछे जो पहाड़ नजर आ रही है, तो हम लोग ट्रेनिंग करने पहाड़ों में जाते थे और वीडियोस बनाते थे। हम लोगों ने तब अपनी चैनल भी बनाई माउंटेन ट्विन फाइटर्स पे। तो हम अपने वीडियोस के थ्रू सोशल मीडिया पे भी मोटिवेट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा मनीषा, क्योंकि ये राकापोशी आप उससे गए थे? जी हाँ, आई हैव बीन देयर, यस, बेस कैंप, टू द बेस कैंप। और मेरे ख्याल से आपने जो थोड़ी देर पहले
स्पिल किए ना बीन्स, वो लोगों को मजीद पता चल रहे होंगे कि आगे प्लान क्या है। लेकिन मलिया मनीषा, थैंक यू सो मच, आपका दुआएं आपके लिए कि इसी तरह आप जो है वो कामयाबियां समेटते रहें और इस तरह इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि कल हमने क्या किया पता है आपको? कल पाकिस्तान की टीम ने पहाड़ जैसा हदफ सर किया जी, और ये बड़ा जरूरी भी था क्योंकि हम ये कल दुआएं भी कर रहे थे इसी प्रोग्राम में बैठ के। तो पाकिस्तान ने कज़ाफी स्टेडियम में तारीख रकम कर दी है, वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ 349 रन अबूर किया। बाबर आजम और इमामुल हक ने सेंचुरियां बनाई। पहले रिपोर्ट देखिए। तो बाबर आजम, इस पैकेज में सबसे बेहतरीन लाइन ये थी कि बाबर आए और बाउंड्रीज की बाहर आई। तो कैसे आई वो आपको दिखाते हैं। पहले बात करते हैं अब इस तमाम तर मामले पे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही अजीज़, बहुत ही करीबी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गायब थे जब पिछली दफ़ा मैंने किया तो फराज थे, तो वेलकम बैक आपको भी और आपको और महक दोनों को सुबह बखैर। अच्छा, ये नासिर हुसैन कह गए थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट वन मोमेंट डाउन द नेक्स्ट मोमेंट अप एट इट्स बेस्ट। तो पहले ओडीआई में ऑफ कलर और दूसरे ओडीआई में इतना कलर। तो बताइए कैसे आपने देखा कल का मैच, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही? फैसल, हमारी टीम पाकिस्तान की ऐसी है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कभी तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है और कभी बहुत ज़्यादा दुख देती है, और लोगों का ब्लड प्रेशर जो है, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उनका अप एंड डाउन करती रहती है हमारी टीम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। कल जब सर पर आफत आई कि पाकिस्तान को ये मैच हर कीमत पे जीतना था क्योंकि सीरीज फिर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, तो हमारे बैट्समैन बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में नजर आए। जिस तरीके से अग्रेसिव, जो लोग कहते हैं कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, तो जिस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अग्रेसिव अंदाज इख्तियार किया, इमामुल हक, फिर फ़खर जमान ने जो शुरू किया, फिर बाबर आजम ने जिस तरीके से आगे लेकर चले, तो आप सही कह रहे थे, चौकों की और छक्कों की बाहर आई थी। तो इन लोगों ने जिस तरीके से मेंटली देवर अप अगेंस्ट दैट टारगेट, कि जो 349 रन का टारगेट था, रिकॉर्ड टारगेट था। आज तक 1971 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट की तारीख की में ऐसा टारगेट कभी चेस नहीं किया। 329 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में। तो मैं समझता हूँ कि जब हम पर आफत आती है, हम पर प्रेशर आता है, तो फिर हमारे खिलाड़ी एकदम से जागते हैं। मेरे ख्याल में कारकर्दगी में फैसल अगर तसलसल रहेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा है। ये ना हो कि एक मैच में चल गए और एक में नाकाम हो गए, हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सही है। अच्छा मिर्जा भाई, एक और बात बताएगा। हाँ जी, तो हम गए, मेहनत हमने की, नजर भी है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन जो है, क्या उससे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल बैग, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। टीम कॉम्बिनेशन पे समझ में नहीं आती। वसीम जूनियर को कल अगरचे उन्होंने 2 विकेटें ली, लेकिन वो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। कभी तो वो बहुत शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे और कभी वो बेहतर गेंदें कर रहे थे। मेरे ख्याल में शाहनवाज दहानी को जो रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है, ऐसे मौका क्यों नहीं देते? फिर उसके अलावा उस्मान कादिर भी है। अगर 2 लेग स्पिनर वो खिला सकते हैं, स्वैप्सन को और जंपा को, तो हम क्यों नहीं खिला सकते थे? फिर उसके अलावा आप खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद की टीम में जगह नहीं बन रही। T20 के स्पेशलिस्ट है, उनको वनडे में आपने डाला हुआ है। खुशदिल शाह जो है वो बुनियादी तौर पर बैट्समैन है और कल उन्होंने प्रूव किया, जिस तरह से 27 रन बनाए, उनसे बॉलिंग भी करा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन के हवाले से दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट। मिर्ज़ा साहब, यकीनन वो कहते हैं ना कि जीत जो है वो एक ऐसा जादुई कालीन है जिसके नीचे सारी बुराइयां छुप जाती हैं। हार वो आईना है कि जिसमें आपको छोटे से छोटे आपकी ऐब वो भी नज़र आती है। पहले वनडे से क्या सीख के हम सेकंड वनडे में आए हैं? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कल फ़खर जमान आउट हो जाते हैं, जो कि पहले बाउंड्री पे भी एक चीज़ हो गई थी स्टॉइनिस के वाले मामला, तो क्या आपको लगता है कि हम ये जीत पाते? हमारे ऊपर टॉप ऑर्डर में इतनी सकत रहती कि वो इसको चला पाते स्कोर को? फैसल, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया कि पाकिस्तान ने पहले वनडे से क्या सीखा। पहले वनडे से ये सीखा कि हमारी बैटिंग जो है वो अपने लिए ना खेले। आप देखें, पिछले वनडे में जो पार्टनरशिप हुई थी बाबर आजम और इमामुल हक के दरमियान, उसमें 50 डॉट बॉल्स थी, तकरीबन 8 ओवर से ज्यादा डॉट बॉल्स थी। तो पिछले वनडे से ये सीख कर आए कि डॉट बॉल्स नहीं करनी, स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है और फिर रन्स जो है वो बोर्ड पर बनते रहने चाहिए। उससे बहुत कुछ सीखा और कल यही हुआ कि आप सही कह रहे हैं, फ़खर जमान वो बिल्कुल मुनफरिद नजर आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, कल उनकी किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी कि वो स्टॉइनस का पाँव जो है स्कर्टिंग से टकरा गया, छक्का हो गया।
ورنہ اس وقت پاکستان پریشر میں آ سکتا تھا. تو پچھلے ون ڈے کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا مرزا بھائی، اب تک پہلے دونوں ون ڈے میچز ہائی سکورنگ رہے، تیسرا بھی آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہی رہے گا؟ میں جس طرح کی وکٹیں ہیں گدافی اسٹیڈیم لاہور میں، آپ پہلے میچ میں دیکھیں آسٹریلیا نے اگر 317 رنز بنائے تو پاکستان نے 225 رن بنائے. کل آسٹریلیا نے 348 رن سکور کیے، پاکستان نے 352. کل 700 رنز بنے. تو جس طرح کی وکٹس ہیں، کیونکہ وکٹس پر پچز پر بڑی تنقید ہوئی تھی، تو ون ڈے کے لیے تو لوگ یا T20 کے لیے ایسی ہی وکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس پر رنز بنے. تو میرے خیال میں کل بھی ایسی ہی وکٹ ہوگی. اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جب آخری مرتبہ آسٹریلیا نے 1998 میں جو ون ڈے سیریز پاکستان میں کھیلی تھی، آسٹریلیا 3-0 جیتا تھا. اب یہ میچ ڈو اور ڈائی کا میچ ہوگا. کل پاکستان کا مورائل بھی اپ ہے تو پاکستان کے امکانات زیادہ ہیں. پچ میرے خیال میں مہک ویسی ہوگی جیسی کہ بیٹنگ وکٹ بنی ہے ابتدائی 2 ون ڈے. چینجز کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں؟ میرے خیال میں تو فیصل ان کو افتخار احمد کی جگہ یا تو کسی اور کو لانا چاہیے، حیدر علی کو لانا چاہیے یا آصف علی کو لانا چاہیے. اور فاسٹ بولنگ میں میرے خیال میں ان کو شاہنواز دہانی کو لانا چاہیے. اس کو موقع دیں. اس کو کب تک گھماتے رہیں گے کرکٹ کی بس کے تنہا مسافر کی طرح؟ اس کو موقع تو دیں کھیلنے کا. اور ہم نے بیٹنگ پہ تو بہت فوکس کر لیا. ٹھیک بات ہے یہ کہ بیٹنگ وکٹ ہے اور رنز آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی بولنگ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں شاہین شاہ آفریدی پچھلے میچ میں نہیں تھے تو ان کا فرق محسوس ہوا. کل انہوں نے 4 وکٹیں لی. ہمارے مین 2 اسپیئر ہیڈ فیصل شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف ہے. ہمیں ایک اور فاسٹ بالر ہو تاکہ، کیونکہ جس طرح کی وکٹ ہے تو ہم اسپنرز پہ بھی ریلائی کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک اور اچھا فاسٹ بالر اگر ہوں تو بات بنے گی. وہی جو میں شاہنواز دہانی کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے پیس کو بھی ویری کرتا ہے، سلو باؤنسر بھی کرتا ہے، یارکرز بھی کرتا ہے، تیز گیندے بھی کرتا ہے. میرے خیال میں اس کے ہونے سے فرق پڑے گا. ہاں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ہم ایک ونڈو میں وہ ڈسمسلز بھی دکھا رہے ہیں. شروع میں جب شاہین آ کے بال کیا ہے، تیز بال اگر کر رہے ہیں، شروع کی وکٹ اچھا پرچیز دے رہی ہے. تو اگر یہی شاہین کے ساتھ شاہنواز کو اگر آپ شروع سے لگائیں جو کہ اچھا پیس کے ساتھ بال کرتا ہے، اور ڈیپتھ اوورز میں جہاں شاہین نے سلو ان ون کیا ہے تو شاہنواز کے پاس بھی کچھ ویریشنز ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ شاہنواز کے آنے سے کچھ فرق پڑے گا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاہنواز آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نا، جسے پیا چاہے وہی سہاگن. جس کو پسند کرتے ہیں وہ وہی ہوگا ٹیم میں، چاہے آپ کتنا ہم اور آپ کتنا شور کیوں نہ مچا لیں. کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا ٹیم مینجمنٹ کا وہی ہوگا. ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، شاہنواز دہانی فیصل کا اور میرا رشتہ دار تو نہیں ہے. ہم تو ٹیم کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. اب یہ ٹیم مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے فیصل کے کیا کامبینیشن بناتے ہیں. اچھا مرزا بھائی، یہ تو ہم آج تعریف کر رہے ہیں نا، ورنہ ایک دن پہلے تک تو یہ جو ہمارا ورلڈ کپ سائیکل ہے، اس کی جو ہماری پرفارمنس ہے وہ اتنی بھیانک ہی اس کو کہیں گے نا آپ، اور کیا کہیں گے، کہ ہم ون ڈے جیت ہی نہیں رہے ہیں. تو اس کی بڑی عذر پیش کی ہے لوگوں نے کہ جی ہم اتنا ون ڈے نہیں کھیل رہے. تو ون ڈے تو آسٹریلیا بھی اتنا نہیں کھیل رہا، لیکن وہ بھی تو ایک فائٹنگ اسپرٹ کے ساتھ آیا نا. تو آگے ہم T20 میں بڑا اچھا چل رہے ہیں، ٹیسٹ میں ہمارے تھوڑے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ون ڈے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں کہیں سست ہو جاتے ہیں، کہیں کھو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کی بیسک ریزن فیصل یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ T20 کھیلتے ہیں، اور T20 کھیلنے کی وجہ سے ہم پورے 50 اوورز نہیں کھیل پاتے جب ون ڈے میچز آتے ہیں. آپ پچھلے میچ میں دیکھ لیں کہ پاکستانی ٹیم 50 اوور سے پہلے آل آؤٹ ہو گئی. تو میرے خیال میں مولڈ میں، جس مولڈ میں جانا چاہیے اس میں نہیں جاتے. آپ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی دیکھ لیں کہ پاکستان دھڑا دھڑ آؤٹ ہوتا ہے. 3 آؤٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد 7 جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، 5 وکٹیں گری ہوتی ہیں اور 5 جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم اس T20 کے خول سے باہر نہیں نکل پائے. تو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ نہ ہو کہ دنیا اپنی مختلف ٹیمیں کھلاتی ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ کے پلیز الگ ہیں، ون ڈے کے الگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب کو ایک ہی اس سے ہانک رہے ہیں لکڑی سے کہ سارے پلیز ایک ہی جگہ پر کھیلتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو اگر ہم ٹیسٹ کے لیے رکھیں، ون ڈے میں ہم ایسے پلیز رکھیں جو اسٹرائک روٹیٹ کرے، جو کھیل سکے. سعود شکیل بدقسمت رہا، جلدی آؤٹ ہو گیا پچھلے میچ میں، کل باری نہیں آئی، لیکن وہ ایسا بیٹسمین ہے کہ جو پھنس کے کھیلتا ہے. کرکٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا فیصل، آپ تو کھیلیں کہ پھنس کر کھیلنا چاہیے. تو ایسا بیٹسمین ہونا چاہیے جو 50 اوورز تک
टीम को लेके चले। ठीक है मिर्जा भाई, अगर हम बाबर की बात करें तो ये भी देखा गया कि इससे पहले बाबर की मीटिंग हुई और उसमें काफ़ी जो है देखा हमने कि बाबर गुस्से का इजहार भी कर रहे थे और कहा भी, उन्होंने शिकवे भी किए कि फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, ज़रा जम कर खेलना है। अगर ये कहते हैं कि थोड़ा डांटा गया, थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो शायद मैं गलत नहीं होगी, ये हम क्या समझेंगे, उसका भी असर है, बाबर के उस गुस्से का असर रंग ले आया? देखिए प्रेशर होता है ना मैं कि अब बाबर कप्तान है और अभी 27 साल के हैं, उनको कप्तानी मिली है और उन पे प्रेशर है। दुनिया के T20 और वनडे के नंबर 1 बैट्समैन है, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पे आते हैं, तो उस लिहाज से उन पे प्रेशर तो होता है कि हर चीज़ उनकी स्टेक पर है। लोग कहते हैं पाकिस्तानी टीम में 2-3 ही प्लेयर है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, तो प्रेशर तो बाबर पर है जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मिर्जा भाई लास्ट में ये भी बताएगा कि बोर्ड में क्या चल रहा है, कुछ तब्दीली की बातें हो रही हैं, कोई तब्दीली नजर आएगी? देखिए तब्दीली तो पाकिस्तान में उस वक्त आती है जब हुकूमतें तब्दील होती, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब नजम सेठी साहब थे तो उन्होंने बजाय सदर मुमलिकत के वजीर आजम को पीसीबी का पेट्रन इन चीफ बना दिया था। और आप देखें जब इमरान खान आए, उन्होंने आते ही नजम सेठी को हटाकर एहसान मानी को लाए और फिर उनके बाद रमीज राजा को लाए। तो सबकी नजरें इस पोस्ट पर मरकूज हैं। जब हुकूमत तब्दील होती है तो क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी तब्दीली आती है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो भी आए सियासी बुनियादों से हट कर आए और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो क्रिकेट को सही समत में ले जा सके, वही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। तो अब मिर्ज़ा भाई तमाम तर जो तवज्जो है वो मरकूज़ होंगी आखिरी ODI पे, जो कि एक वर्चुअल फाइनल का सूरत इख्तियार कर चुका है। क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अज़मिल्ला की पहले दोनों ODIs में बैटिंग करके बड़ा टोटल जो है उसने पुटअप कर दिया है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे बॉलिंग में इवन अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है, कहाँ पे उनको हम पकड़ सकते हैं कि वो पहली इनिंग्स में ही मैच हमसे बहुत दूर ना ले जाएं? देखिए एक तो मेन विकेट उनकी फैसल ट्रेविस हेड की होगी, जिसने पिछले मैच में 100 किए, कल के मैच में 89 किए। और आप ये भी नोट करें कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, ना डेविड वार्नर है, ना स्टीव स्मिथ है, ना मिचेल स्टार्क है, ना जॉश हेजलवुड, ना पैट कमिंस, और मिचेल मार्श भी चले गए, वो अनफिट हो गए थे। तो उनकी टीम में वो ऐसे प्लेयर्स दूसरे हैं जो कि रिजर्व में होते हैं, उनको मौके मिल रहे और वो उन मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो मिचेल जो हमारा इनका जो बैट्समैन है जो ट्रेविस हेड, उसकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण फिंच थोड़ा सा आउट ऑफ टच है। शुरू में अगर हम आउट कर लेते हैं खासतौर पर ट्रेविस हेड को, तो फिर मेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा और हमें जो है हमारा मोरल बूस्ट होगा और हमें एडवांटेज हासिल होगा। एडवांटेज हासिल हो, ये सीरीज़ में जीत हासिल हो, यही हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल साहब मौजूद है। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा मैच जीता है, लेकिन यही कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐसी जुड़ चुकी है हमारी टीम के साथ, तो साल से चली आ रही है। एक मैच बुरा खेलते हैं, दूसरा बहुत अच्छा खेलते हैं, अल्लाह करे कि तीसरा मैच भी बहुत अच्छा खेलें, अल्लाह करे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI की कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये गद्दारों के लिए पेशगी इंतबाह है कि हल्कों में क्या चीज़ उनकी मुंतज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का था दूसरा मरहला, ऐसे में PTI ने हासिल की कामयाबियाँ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कराची में पुलिस एहलकारों के हाथों हलाक नौजवान के अबदी सुकून के लिए बाप ने एक मिसाली कदम उठाया है। जो घर बेटे की शादी के बाद उसकी रिहाइश के लिए बनवाया था, उस घर को वालिद इश्तियाक ने मकतूल इंतज़ार के इसाले सवाब का ज़रिया बना दिया। वालिद इश्तियाक ने मस्जिद तामीर करवा दी। इस मिसाली इक़दाम पर बात करने के लिए मकतूल इंतज़ार के वालिद इश्तियाक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, आपको सर मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा आवाज़। जी, मैं चाहूँगी कि हम ये चीज़ ज़रा देखें और आवाज़ का जो ये इशू है इसको रिजॉल्व करें। तब तो तक मैं ये जो
पूरा मामला रहा था, इस पे जरा एक नज़र डालते हैं। काफ़ी दिनों तक ये ज़ुबान ज़द आम ख़ास रहा था, और जो इश्तियाक अहमद साहब हैं वो बज़ाते ख़ुद कई मरतबा प्रोग्राम्स में आते रहे और तमाम तर चीज़ें होती रही। इस पे बात करेंगे हम, लेकिन अभी आपको बताएं कि असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। उसके अलावा तमाम बड़ी फसलों का जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नजर आ रही है, और उससे भी शायद ज्यादा अहम काश्तकार को कीमत मिल रही है। जितनी मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में गंदम की कीमत के अंदर काश्तकार को जो मुआवजा मिलना है, हमारा वो किसान जो पाकिस्तान का पेट पालता है, जो हमें इस बैरूनी खसारों से बचाता है, 5 साल के अंदर गंदम सबसे बड़ी हमारी फसल है, सिर्फ 100 रुपए फी मन का इजाफा किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस साल का जो अभी फैसला हुआ है उसको मिला के 900 रुपए मन से ज्यादा का इजाफा कर चुका है। ये आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि किस किस्म की पॉलिसीज थी। इसी तरीके से अगर हम सनत के ऊपर आ जाए, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सनत हमारी सबसे ज्यादा। आज से 4 साल पहले सूरत हाल ये थी, फैसलाबाद में लोगों से जाके पूछे, कराची में टेक्सटाइल वालों से पूछे, फैसलाबाद में सरिये के दाम के ऊपर टेक्सटाइल की मशीनरी बिक रही थी। इस वक्त कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है टेक्सटाइल की जिसके अंदर एक्सपेंशंस ना हो रही हो। अरबों डॉलर की नई मशीनरी लाई जा रही है, मजदूरों की किल्लत हो गई है स्किल्ड लेबर की वहां पर, और वो क्यों हुआ? टेक्सटाइल के लिए एक पॉलिसी लाई गई। खास तौर पे उसके अंदर मैं जिक्र करूंगा जो तबानाई की कीमतें थी, बिजली गैस के स्पेशल रेट्स दिए गए, और आपने देखा कि किस तरीके से इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर क्या हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर? 2007-8 से लेके 17-18 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलाकर जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ था, उतना उससे ज्यादा इजाफा सिर्फ इस एक साल 2021-22 में होने जा रहा है। 10 साल उनके एक तरफ और 1 साल हमारा एक तरफ, ज्यादा आपको तरक्की देखने में नजर आ रही है। तो जो हदफ तरजीह सेट की गई कि रोजगार पैदा करना है, जो तरजीह सेट की गई कि एक्सपोर्ट बनानी है, उसके अंदर न सिर्फ जो वादा किया गया था वो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप आलमी हालात को देखें, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा, पिछले 2 साल के अंदर सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की लपेट में आई। एक दफा फिर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने जिस तरीके से मिनहसुल कौम उसका मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। उस 2 साल के अंदर जिस वक्त कोरोना से दुनिया की मईशतें बह रही थी बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर 32 लाख रोजगार का इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या बन रही है? और इसमें ये वाला साल शामिल नहीं है। ये मजमूई तौर पर जो पॉलिसियां लेकर आए, पिछले 15 साल में कोई भी 2 साल तवातर से ऐसे नहीं है जिसमें 5% से ज्यादा हमारी मईशत की रफ्तार नमू हो। जीडीपी ग्रोथ रेट किसी भी 2 साल में तवातर से हमारी 5% से ज्यादा नहीं रही। ये 2007-8 के बाद की मैं बात कर रहा हूं। ये साल इंशाल्लाह, अब ये सियासी जो ड्रामा लगा हुआ है इसका उस गैर यकीनी सूरत हाल का क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तमाम अदादो शुमार जो पहले 8 माह के थे उसके मुताबिक हम इस दफा फिर इंशाल्लाह 5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ देखने जा रहे थे, और ये पहली दफा हो रहा था 15 साल में कि 2 साल लगातार हमारी 5% से ज्यादा ग्रोथ हो। ये कोविड के बगैर हो रहा है, और यही मैं दोबारा इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं। अभी जो हम इसको रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं 16 लाख के तकरीबन पिछले 2 साल में हुआ है, लेकिन याद रखें उसमें से जो पहला साल था उसमें तो मईशत की मनफी ग्रोथ हुई और कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ था। पाइट की रिपोर्ट भी आई थी कि वो शुरू के जो महीने थे कोविड के, तो ये इसका जो ज्यादातर इजाफा है तो ये पिछले साल का इजाफा है। अगर इसी तरीके की पॉलिसीज चलती रही 5 साल, अगर यही जो सिमत है, जो डायरेक्शन सेट हुई हुई है, ये चलती रही, मुझे यकीन है कि अगर 1 करोड़ नौकरियां का इजाफा ना हो सका इस 5 साल के अंदर, उसके बहुत करीब जरूर पहुंचेंगे। मेरे ख्याल के अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त चल रहा था और जिन सेक्टर्स में चल रहा था, सॉरी एक मैं बड़ा सेक्टर भूल गया, अभी मैं बताता हूं, ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। बड़ा सेक्टर जो मैं भूल गया बनाना, जो सबसे ज्यादा रोजगार होती है वो होती है ज़राअत के अंदर पाकिस्तान में,
اور جو شہری علاقے ہیں اس میں سب سے زیادہ روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن. اور آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن کے سیکٹر کو اٹھانے کے لیے کس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نے خود اس کو لیڈ کیا. ہر ہفتے میٹنگز ہوتی تھیں, باقاعدہ ایک NCC بنی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ مانیٹر کرتے تھے, پالیسیز چینج, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز چینج, فائنانس منسٹری کے انسینٹیوز, ایڈمنسٹریٹو اپروولز کے اندر چینجز, فورکلوجر لا جو کورٹس میں پھنسا ہوا تھا اس کو وہاں سے اپروو کرانا, یہ پوری ڈائریکٹ لیڈ کر کے. اور وہ ایک وجہ بن رہی ہے اس امپلائمنٹ کے اضافے کی, کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا مجموعی طور پر کارکردگی جس کی بنیاد کے اوپر, جیسے میں نے کہا, یہ سیاق و سباق ہے جس کی وجہ سے اتنے جو الحمدللہ اچھے ہمیں روزگار بڑھنے کے نمبر نظر آ رہے ہیں, اس کی یہ وجہ ہے. اب آخر میں کیونکہ سیاسی عدم استحکام کی میں نے بات کی, اس کا بھی میں ذکر کر دوں تو پاکستانیوں کو میں دو چیز کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ایک تو کل امام الحق اور بابر اعظم نے بڑی شاندار بیٹنگ کی اور پاکستان نے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے ون ڈے انٹرنیشنل کا رن چیز کر کے جیتے, تو ایک تو اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. دوسرا جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں پاکستان کی قوم کو کسی وجہ سے دے رہا ہوں. حالانکہ الیکشن جو ہے کل صرف خیبر پختونخوا کے ایک حصے کے ایک علاقے کے اندر آدھے تقریباً خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہا تھا. ابھی تک جو نتائج ہمارے پاس سامنے آئے ہیں, تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف نے ان سے 1.5 گنا زیادہ تحصیلیں جیتی ہیں. یعنی قوم جو ہے وہ اپنے دلیر لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب فیصلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ عدم اعتماد کے اندر ووٹ کتنے پڑیں گے, وہ چیز چھوٹی ہو گئی ہے. اب اصل چیز جو ہے, جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے, وہ فیصلہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان. اسد عمر گفتگو کر رہے تھے جو کہ ہم نے آپ کو لائیو مناظر دکھائے. چلیں جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہم بات کر رہے تھے انتظار کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق احمد صاحب. اشتیاق احمد صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جو یہ اقدام آپ کی جانب سے اٹھایا گیا ہے قاری خیر کے لیے, اس کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے. سر, یہ وہ گھر تھا جہاں پر انتظار نے رہنا تھا اپنی شادی کے بعد, آپ نے اس کو مسجد بنوایا. یقیناً جو آپ کے دلی جذبات ہیں میں چاہوں گی وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کرنے کی توفیق عطا کی. تو یہ سب کچھ انتظار کا تھا کیونکہ انتظار ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تھا. یہ سب کچھ انتظار کا تھا. اب میں روتا تھا کہ میں انتظار کو کیسے دوں, تو مجھے یہی راستہ نظر آیا کہ میں اس طرح سے انتظار کو بھیج سکتا ہوں, اور میں نے اس کو انتظار کو بھیج دیا. اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے اور تا قیامت اس کو اس کا اجر ملتا رہے اور یہاں عبادت ہوتی رہی, اللہ کا ذکر ہوتا رہے. تو یہ میرے شوق تھا کہ یہ سب کچھ انتظار کا تھا. اب اس کے کام نہیں دنیا میں آ سکا تو اس دنیا میں آ جائے. بے شک. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جس نے مسجد بنائی اس نے آخرت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا. تو یقیناً نہ صرف یہ آپ نے کار خیر کیا بلکہ جس مقصد کے لیے کیا ہے تو وہ بڑا ہی افضل ہے. کب سے نمازی حضرات جو ہے وہ یہاں پہ نماز کی ادائی وغیرہ شروع کر سکیں گے, کیونکہ میرے خیال سے رمضان اب 1-2 دن ہی دور رہ گیا ہے, تو یہ بڑے یہاں پر نماز کا سلسلہ تو یہاں پر وینسڈے ظہر کی نماز سے شروع ہو گیا ہے, بدھ کے دن ظہر کی نماز سے شروع ہو گیا ہے. لیکن آج افتتاحی تقریب میں مفتی منور الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو اس کی میلاد مصطفیٰ رکھی گئی ہے اور نمازوں کا سلسلہ تو بدھ سے جاری ہے اور ہر نماز اس میں ادا کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تراویاں بھی ہوں گی, اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھیں گے, اور یہ ایئر کنڈیشن مسجد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر ویلفیئر کے کام ہوں گے, کیونکہ جو بھی اثاثہ جو بھی سرمایہ میرے بیٹے کا تھا, میں چاہتا ہوں اس دنیا میں اگر اس کے کام نہ آ سکا تو میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میرے بیوی بچوں کے کام اس دنیا میں آ جائے. اشتیاق صاحب, اس مسجد میں کتنے لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, کتنی کیپیسٹی ہے, کتنے نمازی یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور جیسے اب آپ نے کہا کہ آپ کا ایک لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ یہاں پر تراویاں ہوں گی, لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے, تو پلیز یہ بھی بتائیے گا. جی, یہ مسجد جو ہے گراؤنڈ فلور پہ تو تقریباً 150 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. اس کے علاوہ اس میں بیسمنٹ بھی ہے اور میزنائن بھی ہے. سائیڈ میں
खुला आसमान के नीचे भी जगह है और फर्स्ट फ्लोर भी है, तो टोटल सब जगह नमाज मिला के 700 से 800 लोग पढ़ सकेंगे बआसानी। लेकिन ये है कि आम नमाज़ों में तो इतनी लोग नहीं आते, तो वो मदरसे में बच्चे तालीम भी हासिल करेंगे और नमाज के औकात में वहाँ नमाज भी अदा की जा सकती है। तो इसमें काफ़ी गुंजाइश है बिल्कुल, और इसमें 700 से 800 लोग बआसानी नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर। हमारा है कि अल्लाह ताला आपके जो आपने ये कार्य खैर किया है इसका अज्र न सिर्फ आपको, आपके ख़ानदान को, बल्कि इंतज़ार को दे और ऐसा दे कि ये सदका जारिया है, ये ता क़यामत ये जारी रहे सिलसिला। बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि रज़ाउल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, वो मुबारक महीना जिसकी बहुत चाह से, बहुत तड़प से पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं और अल्लाह ने इसे अज़मतों और बरकतों वाला महीना बनाया है। अब रमज़ान मुबारक से पहले रमज़ान की तैयारी करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि महीने से पहले महीने की तैयारी कैसे? जैसे हम कहते हैं ना कि रमज़ान की तैयारी तो ग्रॉसरी कर लें, फलानी चीज़ घर में ले आएँ, घर को इस तरह कर लें, ये तो तैयारी है, लेकिन इस महीने को और किस तरह से आप मना सकते हैं, इस महीने को और किस तरह से आप वेलकम कर सकते हैं, आपकी दीनी तैयारी क्या होनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मुफ्ती साकिब हुसैन साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, हर चीज़ की एक तैयारी होती है, हर चीज़ की आमद से पहले उसका एक जोश है, उसको मनाने का एक मोहब्बत भरा अंदाज है। इसी तरह रमज़ान जिसका इंतज़ार पूरे साल हमें रहता है, हम कहते हैं इस दफ़ा हमने रमज़ान में अपनी रूटीन ऐसे सेट करनी है, ऐसे सेट करनी, इतनी देर हमने कुरान पाक पढ़ना, इतनी देर हमने ये तस्बीह पढ़नी। मैं चाहूँगी 1-2 दिन मुश्किल से रह गया रमज़ान आने में, जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए रमज़ान की तैयारी क्या होनी चाहिए? आपको रमज़ान के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि 1-2 दिन के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाएगा और अल्लाह करे कि हमें रमज़ान शरीफ नसीब हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी हम दीनी काम करते हैं या कोई भी मामला करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे रोल मॉडल जो है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान शरीफ का इस्तक़बाल कैसे किया? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबानुल मुअज़्ज़म में रोज़े रख के बताया कि यह है इस्तक़बाल रमज़ान, रोज़े रख के बताया। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ान शरीफ के अलावा ज़्यादा रोज़े नहीं रखे, यानी हुज़ूर ने सबसे ज़्यादा रोज़े जो रखे वो शाबानुल मुअज़्ज़म में रखे। अच्छा, अब हमारी जो तैयारी है वो क्या? हमारी तैयारी तो यकुम शाबान से होनी चाहिए थी। अब हमारी तैयारी क्या? हम अच्छी चादर बिछा लें घर में या कोई खुशबू लगा ले कि रमज़ान शरीफ तशरीफ़ ला रहा है? नहीं, बल्कि इस्तक़बाल रमज़ान जो है, लोग कहते हैं ना, इस्तक़बाल रमज़ान जो है एक वजदानी, रूहानी और एक बातिनी कैफ़ियत का नाम है। अंदर से आप बस अपने आप को जो है ऐसा बना लें कि रमज़ान मुबारक तशरीफ़ ला रहा है, मैंने अल्लाह की बारगाह में जो है अपने आप को अब ऐसा बनाना है कि जिसका असर अगले रमज़ान तक रहे। ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान शरीफ में हो और उसके बाद फिर, जैसे कुरान मजीद कहता है ना, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी मर्द के दिल में सीने में 2 दिल नहीं बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गोश्त का लोथड़े का दिल होगा, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप रमज़ान शरीफ में नेक बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं और दूसरी तरफ आप मिलावट भी कर रहे हैं। जी हाँ। और उधर आपने रोज़ा खोलने के लिए लोगों के इंतज़ाम भी कर रखा है और यहाँ आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं। ये गलत काम भी हो रहा है। और उसके बाद फिर जो है वो आप तरावी भी पढ़ रहे हैं और उसके अलावा दूसरे काम भी आपके चल रहे हैं, भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो आप जो है वो तहारत वाले काम भी कर रहे हैं और खबासत वाले भी काम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। चलेगा वो जो अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है आपके लिए मुकर्रर फरमा दी है, और वो यही है कि आप जो है अपनी तैयारी ऐसी करें कि जब रमज़ान शरीफ आने को है अब, तो या अल्लाह बस मैंने अब सारे गुनाहों से तौबा कर ली है, अब मैंने नवाफिल का, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करना है, तरावी बराबर पढ़नी है। अब मैं छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा, क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहा करता हूँ, 10 रोज़ा 5 रोज़ा तरावी का इंतज़ाम करके लोग क्या करते हैं, पूरे रमज़ान बेबाक हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से अरे भाई ये शरीयत है, ये तबीयत नहीं है। रमज़ान मुबारक शरीयत के मुताबिक पूरा उसके ऊपर अमल करो, तबीयत के मुताबिक नहीं करो। वो तबीयत के मुताबिक चलते हैं, 10 रोज़ा कर लिया उसके बाद बाज़ारों की रौनक बन जाते हैं, वो तो बाज़ारों की रौनक नहीं बनना है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी रमज़ान शरीफ का यकुम रमज़ान आ रहा है तो इस्तक़बाल रमज़ान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आखिरी शब जो ईद उल फितर की जो रात होती है ना, हुजूर ने फरमाया वो तो दिहाड़ी लेने का, मजदूरी लेने की रात है। उस रात को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है
تمام رمضان شریف کے برابر جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے ان کے برابر اس رات کی مغفرت فرمائے گا. تو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, نہ کہ بازاروں کا. اچھا مفتی صاحب, یہ میں آپ سے یہ ہم نے انفرادی طور پہ بات کی ہے, کیونکہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, یہ نہ صرف انفرادیت کی بلکہ اجتماعیت کا بھی درس دیتا ہے. حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہے, اور رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد کو بہترین طریقے سے پہچانیں, ان کو ادا کریں. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں جو کہ فیلنتھراپی کے لیے بڑا مشہور ہے, درد دل درد مند لوگ ہیں, افطار کے وقت پہ کوئی سڑک ہو کوئی شارع ہو, لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کھڑے رہتے ہیں, اور مڈل کلاس سے ہو امیر طبقہ ہو وہ افطار لے کے کھڑا رہتا ہے. مفتی صاحب, لوگوں تک یہ میسیج ضرور پہنچا, ہم پورا رمضان اس پہ بات کریں گے, یہ پریکٹس ہم ایک ایسے ملک میں ایک ایسے شہر میں پورا سال کیوں نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پہ غربت بھی ہے, بھوک بھی ہے. چلے اس کو اپنا شعار بناتے ہیں, جو لوگ جتنوں کو دے سکتے ہیں اپنی جیب سے وہ دیتے ہیں. ہم نے اس کو صرف رمضان کے لیے کیوں مقرر کر لیا ہے؟ ہم رمضان سے یہ سیکھ کے باقی دنوں میں کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ کاروباری نقطہ نظر ہے کہ لوگ یہ سب کچھ کر کے اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں. حتیٰ کہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض میڈیا چینلز بھی ایسے ہیں کہ جو رمضان شریف میں دینی پروگرام قائم کر کے اور اپنے بازار کو چمکاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر جو ہے وہ افطار کا انتظام کس میں ہوتا ہے؟ آج کل افطار کا انتظام غریبوں کے لیے نہیں ہوتا. بہت معذرت سے میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ افطار کا انتظام ہوتا ہے اپنے لوگوں سے روابط قائم کر کے آگے تعلقات بڑھا کر کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے. افطار پارٹی ہوتی ہے. مجھے بتائیے افطار پارٹی کے اندر غریب لوگ آتے ہیں؟ حالانکہ ہونا یہی چاہیے نا, ہونا غریب کے لیے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ افطار پارٹی جو آپ کر رہے ہیں, افطار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت روایت, حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں ایک گھوٹ, یعنی اگر وہ دودھ کا ایک گھوٹ پانی کا ایک کھجور سے بھی اگر کسی کا روزہ افطار کرا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا, اور وہ جب جنت میں داخل ہوگا اس وقت تک کتنا لمبا دورانیہ ہوگا, اسے پیاس نہیں لگے گی. اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا ثواب ہے, لیکن آپ جو ہے وہ اس کو روزہ کھلوائیں گے کہ جس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچے گا. اس غریب کی جو دعا لگے گی نا, اس سے آپ کو سروکار نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے. تو غریب وہ ہوگا جو بیچارہ جسے جو اچھا بعض مانگتے نہیں ہیں, جو صفوت پوش ہوتے ہیں, لیکن آپ لائن لگا کے جو لوگ لینے والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو دے دیتے ہیں آپ, اور پھر کوئی تصویر کھینچے کوئی. میں نے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بھی 1000 کا نوٹ دے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں, تو تبرک کے طور پر وہ اس بوڑھی خاتون کی جو ہے تذلیل کس طرح ہو رہی. خاموشی کے ساتھ دے دیں, خاموشی کے ساتھ روزہ کھلوائیں, افطار کا انتظام کریں. آپ نے جیسے کہا چوراہوں پر ہر جگہ پر, دیکھیے پورے سال انتظام تو روزہ لوگ نہیں رکھتے, رمضان مبارک کی فضیلت کا اپنا ایک امتیاز ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پورے سال یہ رمضان آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. جی ہاں, انما الصدقات للفقراء والمساکین. قرآن مجید نے کہا کہ مساکین اور فقراء کے لیے آپ کے صدقات ہونے چاہیے نا. آپ تو کھلا رہے ہیں جناب, بہترین ڈریس پہن کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں آپ, اور پھر بلا امتیاز جو ہے وہ آپ نے امیر لوگوں کو بلایا ہوا ہے, فقیروں کو آپ بلا رہے نہیں, اور جو فقیر آ رہے چلو بھاگو یہاں سے, تمہیں نہیں دیں گے ہم. تو مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. حالانکہ اس کی کایا پلٹ ہونی چاہیے, بالکل الٹا ہونا چاہیے. جن کے پاس ہے ان کو بولے اپنے گھروں میں رہیں, ان کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ان کو کھلائے جن کے پاس نہیں ہے. بالکل اسی کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں تیجا 40واں ہوتا ہے, برسی ہوتی ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا کھانا بھی فقراء کھائیں گے, رشتہ دار نہیں کھائیں گے, ان کے لیے جائز ہی نہیں کھانا. بے شک, بالکل. تو اس پہ تو ہم رمضان میں آپ سب سے آپ ہمارا حصہ رہیں گے, تفصیل سے گفتگو ہوگی. آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم رمضان پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. میں اور مہک اسلم آپ کو, اور آپ سے ملاقات اب جب ہوگی تو وہ ممکنہ طور پر پہلا روزہ بھی ہو سکتا ہے, یکم رمضان کو ہوگی. ہاں, یکم رمضان کو بھی ہوگی, اور رمضان میں ہم جو ہے آپ سے ملاقات کریں گے 2 بجے سے 4 بجے تک دوپہر کو. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.